Welcome back to my channel again. Today in this video I'll be continuing my journal medicine synopsis and okay, so the first video was very short and I was supposed to cover a number of things, but anyways I'll cover them in this video. And the people who are new on my channel, I want to say that if you are pursuing dentistry and you want to give any higher exams, if you are a NEET aspirant, you're most welcome to our channel because I cover synopsis and which is the most important part of the chapter. And if you have anyone in your families or friends who is doing dentistry, you can recommend my channel to them. As well as don't forget to hit the like button as well as subscribe, and do hit the notification bell so that every time I upload a video you get notified. And please do like it. And if you have any question or query, you can comment down, because all these small things just motivate me to make more and more videos. So yeah, it's really motivating and helpful. Okay, so let's get started. In this video I'll be continuing from the table number 3 that I have left in the first video. So let's get started now. So let's get started. In this table, different types of pathological processes have been given and different types of features have been mentioned. That one is pleural effusion. Pleural effusion, I've told you, uh, when the pleural tissue, okay, it comes up with the fluid, then it is pleural effusion. When it got pockets filled of pus, then it is called as empyema. So this is our lungs and this is pleural cavity. So in the pleural cavity, if we have fluid, then it is called as empyema. If we do have pockets of pus, then we called as empyema. If we have fluid, we call it effusion. If we have pus, we call it empyema. And because of this, the mediastinum displaces to the opposite side. For example, if this lung is uh, being plugged to this, or this pleural tissue is being affected, then whole of the mediastinum will be just shifting to the opposite side. On percussion, it will sound like a dull stony sound. It has dull stony sound. Okay. And breathing sounds are diminished or absent. They're actually very diminished or absent. And talking about some added sounds, so there will be some pleural rub above the effusion. Pleural rub मतलब ऐसा लगेगा कि रबिंग हो रही है, जो प्लूरल टिश्यू है आपस में उसमें रबिंग हो रही है. तो this is some of the added sound. So next is pneumothorax, that is air leak between the lungs and the chest wall. If there is a leakage of air from the lungs, then it is called as pneumothorax. Pneumothorax also has a mediastinal displacement in the opposite side. And talking about the sound on percussion, it has a hyper resonant sound. Hyper resonant. In case of effusion and empyema, it was dull. But in case of pneumothorax, in case of air leak, it has hyper resonant sound. And breathing sounds are almost diminished or absent. And added sounds are like crepitations. Why crepitations? Because crepitation का मतलब होता है कहीं पे अगर कोई एयर या बबल या कोई गैस ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसकी जो साउंड होती है उसमें क्रिपिटेशंस देखने को मिलती है. तो बिकॉज यहाँ पे एयर लीक है इसलिए यहाँ पे क्रिपिटेशंस देखने को मिलेगी when the fluid is present. Now consolidations. If we have consolidations, different tiny consolidations in the lungs, so there is no mediastinal displacement. It has no displacement of mediastinum, but it has a dull percussion sound, because consolidations are something solid things, and when it has something solid thing, it will lead to dull percussions. And talking about the breathing sounds, it has a bronchial breathing sound. And there are fine crepitations. Okay, very fine crepitations can be noticed. Talking about collapse, if the lung has been collapsed or there is some fibrosis or fibrous tissue in the lung, what it will lead to? It will lead to the
displacement of the mediastinum to the side of the lesion. If this is a lung and this is being affected and you have fibrosis there, collapse, something there, so mediastinum will deposit will shift to that affected side, and it would have a dull resonance, dull percussion sound. It is dull, and it has bronchial breathing sounds, and it has crepitations. So you need to know these three things. All these have added sound as crepitations, and these consolidations and fibrosis. Okay, fibrous material or consolidation material has bronchial breathing sounds and have dull percussions. So either it's a consolidation or either it's a fibrosis. It has dull percussions. Talking about bronchial asthmas. Now, bronchial asthma is the one which is having no displacement because asthma is so common. Have you ever seen a patient uh, in which you can say, okay, the thorax or mediastinum part of that person is being shifted to? So there is no shifting. There is normal percussions, okay, and the breathing sounds are vesicular with prolonged expiration. Person expirates for a long time, and it has the added sound of rhonchi, so it's important. Asthma is important, and this rhonchi part is important. Talking about emphysema. Emphysema has no displacement of mediastinum, has hyper resonant sounds. So two things, two pathological processes having hyper resonant. One is emphysema, one is pneumothorax. Okay, both are related to air. So emphysema and pneumothorax. So what is emphysema? When there is obstruction of the alveoli of the lungs. So because of that obstruction of alveoli, it also comprises chronic pulmonary obstructive disease. So that is emphysema. So because alveoli are being damaged, so there is no proper exchange of the gases from the blood to the alveoli. So that is emphysema. So emphysema is also involving breathing, this air circulations. Pneumothorax is related to air leak. So all these have hyper resonant sounds. Talking about breathing sounds, it has vesicular with prolonged expiration, just as asthma. So asthma and emphysema has prolonged expirations, and asthma and emphysema both has rhonchi as an added sound. So you should know this. It's really important that asthma and emphysema both has rhonchi as added sounds. Talking about another table having different types of hormones and their effects and their uh, hypersecretion and hyposecretion effects. So talking about mineralocorticoids. Okay, mineralocorticoids are basically the corticoids involved in the mineral metabolisms or involved in absorption of minerals. So biologically we have aldosterone, the very important mineralocorticoid, and it is a life-saving hormone. It's actually a life-saving hormone. And we have deoxycortisone. So two hormones which are very important, and from them aldosterone is way much important. So deoxycortisone and aldosterone are the mineralocorticoids. Aldosterone increases the reabsorption of sodium and also promotes excretion of potassium and hydrogen ions. The mineralocorticoids uses persistent increase in ECF and blood volumes, and this finally leads to increase in the BP. So basically, if you are absorbing a lot of minerals in the body, your blood pressure will increase. So we have two hormones, aldosterone and deoxycortisone, and aldosterone is a life-saving hormone, and it increases the absorption of sodium, and it leads to excretion of potassium and hydrogen ions, and it leads to increase in the BP. Talking about other types of hyposecretion and hyposecretions, if aldosterone increases, so it is called as aldosteronism, and it is due to excessive excretion of aldosterone. So increase in ECF, hypertension,
renal damage and muscular weakness lead to severe depletion of potassium and features of एल्डोस्टेरोनिज्म. अगर एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बॉडी में से पोटाशियम की कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बॉडी में सोडियम बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटाशियम बॉडी से बहुत ख़त्म हो जाएगा तो उससे वीकनेस आएगी मसल्स में, प्लस जो किडनीज है उसमें डैमेज होने का खतरा है, हाइपरटेंशन बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और ईसीएफ में इंक्रीज होगा. समझ रहे हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कम हो जाएगा. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एल्डोस्टेरॉन. Primary aldosteronism is called as Cole's disease. It's really important. People don't know what is Cole's disease. Actually, all these are very confusing. So, what you need to get in your mind, जैसे कि कौन खाते हैं हम, कौन कौन अपीयरेंस आपने सुनी है पेरियो में, प्लाग में कौन कौन अपीयरेंस बन जाती है जब प्राइमरी प्लाग से वो सेकेंडरी में शिफ्ट करता है. तो कॉज जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, like there is some deposition of these circular things आपस में deposit होके कौन appearance बताती है. So you can put it in your mind like aldosterone is related to cons. Like अगर हम भुट्टा ज़्यादा खाएंगे तो एल्डोस्टेरॉन बॉडी में ज़्यादा बढ़ेगा. So primary aldosteronism is Cole's disease and it develops due to tumor in zona glomerulosa of adrenal cortex. जो जोना ग्लोमेरुलसा होती है हमारी कॉर्टेक्स की, हमारी कॉर्टेक्स डिवाइडेड होती है डिफरेंट लेयर्स में, तो उसमें से जो ग्लोमेरुलर वाला पार्ट होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा जिसको कहते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बॉडी में एल्डोस्टेरॉन बनता है. तो उसमें जब डिफेक्ट आ जाता है या उसका जब ट्यूमर हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन बढ़ता है. एल्डोस्टेरॉन बढ़ने से क्या होगा, पोटेशियम कम हो जाएगा. पोटेशियम कम होने की वजह से मसल्स पे फ़र्क पड़ेगा, किडनी में फ़र्क पड़ेगा, बीपी पे फ़र्क पड़ेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे फ़र्क पड़ेगा. सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा एड्रिनल केसेस. कई बार बॉडी में सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है. प्राइमरी तो जस्ट बिकॉज एल्डोस्टेरॉन बॉडी में ज़्यादा हो गया तो हो गया. सेकेंडरी में अलग चीज़ें होती हैं जिसमें एड्रीनल ज़्यादा वो नहीं होती है, एड्रीनल की वजह से नहीं होता, बाकी चीज़ें एड्रीनल को अफेक्ट करती हैं, उसकी वजह से सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म होता है. नेक्स्ट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें, दो मेन चीज़ें, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन. टू मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एज अ नेम इज सजेस्टेड. जो ग्लूकोज है बॉडी का उसको मेंटेन करने के लिए कुछ कॉर्टिकॉइड्स बॉडी में यूज़ होते हैं. कॉर्टिसोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अ हार्मोन ऑफ स्ट्रेस. जैसे ही बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो इट इज़ अ प्रोटेक्टिव हार्मोन. अगर आपको स्ट्रेस से बचाना है तो बॉडी कॉर्टिसोल बनाती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट फीचर्स, दीज आर इम्यूनोसप्रेसिव. इम्यून सिस्टम सप्रेस करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, एलर्जीज कम करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं, ठीक है, और ब्लड शुगर बढ़ाते हैं. ऑब्वियसली बात है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, क्या काम करेंगे, ब्लड शुगर बढ़ाएंगे. जहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चीनी की, जब हम किसी स्ट्रेस कंडीशन में होता है हमारी बॉडी के अंदर की चीनी बढ़ जाती है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो वो कौन बढ़ाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ाता है. प्लस बॉडी में क्या करते हैं कि ये जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करते हैं, एंटी एलर्जी का काम करते हैं, प्लस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करते हैं. अब लेट्स टॉक अबाउट कुशिंग सिंड्रोम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लोग कॉन सिंड्रोम में और कुशिंग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो मैंने आपको कॉन का एक निमोनिक बताया था, नॉट अ निमोनिक बट ठीक, जैसे कि आप इसको कॉन कॉब से जोड़ सकते हो या फिर आप इसको भुट्टे से जोड़ सकते हो जिसकी अपीयरेंस कुछ ऐसी होती है. तो इसको आप जोड़ सकते हो एल्डोस्टेरॉन से कि अगर हम भुट्टा ज़्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा बढ़ेगा. इट साउंड्स फनी बट आई थिंक इट कैन हेल्प. दूसरी चीज़ हम बॉडी में कशिंग सिंड्रोम के लिए यूज़ कर सकते हैं कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ओबेसिटी ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. कुशिंग का क्या मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी में चीनी ज़्यादा बढ़ेगी
ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स चीनी बढ़ाएंगे। तो जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे बॉडी में तब कुशिंग सिंड्रोम होगा। कुशिंग से आप याद रख सकते हैं कुशन्स। एंड कुशन्स कैसे होते हैं? कुशन्स थोड़े बड़े 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 अच्छे लगते हैं, तो इट कैन रिलेट टू ओबेसिटी। और ओबेसिटी कैसे होती है? जब लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं। तो या इट कैन रिलेट टू कुशन्स टू ओबेसिटीज। इट्स फनी, आई नो। नेक्स्ट वी कैन यूज अ बफेलो हम्प मून फेस। ओके, अगर किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है तो क्या होगा? उसका जो फेस है बहुत गोल हो जाएगा, बहुत मोटा मोटा हो जाएगा, जाते हैं स्मूथ फेस। उसकी जो हम्प है, जैसे कि बफेलो में एक हम्प दिखाई देता है बड़ा सा, वैसा हम्प उसकी बॉडी में दिखाई दे सकता है। पोर्ट बैली, लेमन ऑन द टूथपिक अपीयरेंस। उसकी जो बेली है इट विल बी जस्ट लुकिंग लाइक अ पॉट बेली। एंड these are some of the important features of Cushing syndrome. And hypertension and hinduism are the other features. तो सिंपल सी बात है, हमने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पे कि जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए क्या होता है कि अगर उनकी बॉडी में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम है, उनकी बॉडी में अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ते हैं तो भी प्रॉब्लम है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली एल्डोस्टेरोन अगर बढ़ेगा, कॉल्स डिजीज़ अगर होगी तो भी उनको प्रॉब्लम है, उनका बीपी बढ़ेगा और पोटेशियम कम होगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ेंगे तो भी उनकी बॉडी में प्रॉब्लम है बिकॉज उनका बीपी बढ़ जाएगा। तो बीपी वाले पेशेंट, और बीपी इज़ वेरी कॉमन डिजीज़, हर एक किसी में दिखाई देती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होती है कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स से उनका बीपी बढ़ सकता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स से उनका बीपी बढ़ सकता है। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉनिक एड्रीनल इनसफिशिएंसी। इट इज़ इनसफिशिएंसी, हार्मोन जितना बनना चाहिए नहीं बन रहा है। तो इट कैन लीड टू पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। पिगमेंटेशन हो जाएगी, स्किन डार्क कलर की हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएंगे, बीपी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन चाहिए, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बॉडी में चाहिए वो नहीं बन रहा है, सफिशिएंट नहीं है। सो एडिसन्स डिजीज़, एडिसन का क्या मतलब है कि वो एडिशन चाहता है, उसके पास कमी है, अगर हम उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ऐड कर देंगे तो वो पूरा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट इज़ देयर एज एडिसन्स डिजीज़। तो ऑब्वियसली बॉडी कमी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की तो बीपी कम हो जाएगा, चीनी कम हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, इन्फेक्शंस हो सकता है बॉडी में, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, मसल्स वीक हो जाएंगे क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी है। सो मसल्स का क्या सीन रहता है? मसल्स में अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है तो भी मसल्स पे प्रॉब्लम आती है। कम हो जाए, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो जाए बॉडी में तो भी मसल्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मसल अगर कि कोई पेशेंट है जिसको मसल वीकनेस है, सो यू कैन रूल आउट कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है। वैसे तो जर्नल ड्रग्स दे देते हैं, बट कई बार अगर स्पेसिफिकली रूल आउट करना हो तो हो सकता है उसकी बॉडी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इम्बैलेंस है। इसका मतलब उसकी एड्रीनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ज़्यादा बढ़ जाएगी, पोटेशियम कम हो जाएगा तो मसल्स में वीकनेस है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर बॉडी में कम बनेगा तो भी मसल्स में वीकनेस आएगी। सो इट्स जस्ट रिलेटेड टू कॉर्टिकॉइड्स। सो आई होप ये जो 3 डिजीजेस पढ़ी है हमने बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है पेपर में बहुत बार। तो आई होप दिस हेल्प यू। टॉकिंग अबाउट CVS, टॉकिंग अबाउट वैस्कुलर डिजीजेस। तो यहाँ पे अब हम CVS हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टेनोसिस और ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी टू दिस। We will not go into details because it's very vast topic, but I'll try to explain it. Okay, talking about this, first thing is mitral stenosis. Stenosis का क्या मतलब होता है? मतलब अगर हमारी जो वेसल, नॉट वेसल्स, स्टेनोसिस का मतलब होता है कि जिस वेसल में ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है, जिस वेसल से ब्लड आ रहा है, अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो जहाँ पे उस ब्लड को जाना था वो नहीं जा पाएगा, तो दैट इज स्टेनोसिस। अब फीचर्स क्या होता है? मिट्रल स्टेनोसिस का क्या मतलब है? ये हमारा हार्ट है, ये हमारे एट्रियाज है, ये वेंट्रिकल्स है। इफ दिस इज द राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड में हमारे पास बाइकस्पिड्स और मिट्रल वॉल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्स होते हैं।
तो अगर ये ब्लड को यहाँ से आना था, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, इस वॉल में अगर प्रॉब्लम हुई, तो ये ब्लड यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे ब्लड नहीं पहुँचेगा, यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा भर जाएगा, तो इस एरिया में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है उसकी हाइपरट्रॉफी हो सकती है। ठीक है, तो होगा क्या इससे? ब्रेथ शॉर्टनेस, दैट इज डिस्निया। जहाँ पे वर्ड निया आ जाता है उसका मतलब होता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, तो डिस्निया हो सकता है उसको, एडिमा हो सकता है, साइटिस हो सकता है। बताती हूँ मैं क्यों होएगा। देखो जैसे ये ब्लड है, हार्ट है, अब इसमें प्रॉब्लम आ गई है, लेफ्ट एट्रियम में प्रॉब्लम है। लेफ्ट वाला जो एट्रियम है वहाँ पे जो ब्लड है वो कहाँ से आता है? लेफ्ट वाला जो होता है बेसिकली वो होता है ऑक्सीडेटेड। ठीक है, ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है ये हमारे पास। अब जो ऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो आपका बेसिकली आ रहा है लंग्स से। ठीक है, ये लंग्स है और लंग्स से ऑक्सीडेटेड ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से जाके इट गोज टू द ऑल ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, ताकि उनको ऑक्सीडेटेड ब्लड मिले। ऑर्गन्स में जाएगा, ऑर्गन्स से डीऑक्सीडेटेड ब्लड जितना भी है वो उठ के आएगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाके ये ब्लड वापस जाएगा लंग्स में। ओके, दिस इज अ साइकिल। अब अगर लेफ्ट एट्रियम में अगर प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब जो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड आया बट आगे नहीं जा पा रहा, तो अब आगे नहीं जा रहा तो ऑर्गन्स में ब्लड नहीं जा रहा, ऑर्गन्स को ब्लड चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। तो अब क्योंकि ऑर्गन्स में ब्लड नहीं जा रहा है, वहाँ से जो ब्लड उनको ऑक्सीडेटेड ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो बेसिकली क्या है कि जो ब्लड वापस से पंप हो के आपके राइट हार्ट में आना था, तो उसमें इनसफिशिएंसी होगी। ऑब्वियसली बात है, जितना ब्लड राइट हार्ट में आना था वो नहीं आ रहा उतना, तो क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड वापस नहीं आ रहा, तो जो राइट हार्ट है उसका फेलियर हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है यहाँ पे। तो राइट हार्ट फेलियर is a feature and it shows some features like edema, ascites, body abdominal में जो बॉडी है, एब्डोमिनल जो है आपका, उसमें बॉडी फ्लूइड बढ़ जाता है, एडिमा हो जाता है, असाइटिस हो जाता है, तो दैट इज़ अ फीचर ऑफ राइट हार्ट फेलियर। राइट हार्ट फेलियर किस वजह से हो रहा है? बिकॉज आपका जो ब्लड है वो पंप नहीं हो पा रहा आगे। इट कैन लीड टू पैपिलेशंस, ओके, इट कैन लीड टू एट्रियल फिब्रिलेशंस, क्योंकि एट्रियम में ब्लड बहुत ज़्यादा भर गया तो वहाँ पे फिब्रिलेशंस हो सकती है। इट कैन लीड टू हेमाप्टाइसिस, दैट इज कफ, ब्लडी कफ बिकॉज ऑफ पल्मोनरी कंजेशंस। इट कैन लीड टू चेस्ट पेन। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स एंड ब्रेथ शॉर्टनेस आई हैव टोल्ड यू। तो आपको ये फीचर्स याद रखना है कि अगर आपका राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम अगर आपका इन्वॉल्व रहेगा, सो बंदे को सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, बंदे को जो है एब्डोमेन में फ्लूइड ज़्यादा भर जाएगा तो एडिमा की प्रॉब्लम हो सकती है, साइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, पैल्पिटेशंस हो सकते हैं बंदे को हेमाप्टाइसिस हो सकता है, और साथ में जो है इट कैन लीड टू चेस्ट पेन ऑल्सो। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको पता चल गए कि मिट्रल स्टेनोसिस में दिखाई दे रहे होते हैं। साइंस क्या है? अब साइंस, बेसिकली साइंस वो चीज़ें होती है जो डॉक्टर खुद देखता है, सिम्टम्स वो चीज़ें होती है जो पेशेंट डॉक्टर को बताता है। तो अब साइंस की अगर हम बात करें, एट्रियल फिब्रिलेशन हमें देखने को मिलेगा, मिट्रल फेसियोसिस हमें देखने को मिलेगा, ऑस्कल्टेशंस, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट हार्ट साउंड काफ़ी लाउड होगी। फर्स्ट हार्ट साउंड कब आती है? जब हमारे ये जो वॉल्स होते हैं ये बंद होते हैं, तब आती है, और हमारे तो इसी वॉल में प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट साउंड जो है हार्ट की वो काफ़ी लाउड होगी। ओपनिंग स्नैप होगा, मिड डायस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगी। साइंस जो है पल्मोनरी कंजेशन के वो देखने को मिलेंगे। क्रिपिटेशंस होगी, पल्मोनरी एडिमा होगा, हाइपरटेंशंस होगी, राइट हार्ट फेलियर होगा, कर्ले बी लाइन्स इन द चेस्ट। तब आप एक्सरे देखोगे ना चेस्ट का, यू कैन फाइंड सम कर्ले बी लाइन्स। तो कर्ले बी लाइन्स क्या सीन है? यू कैन गो एंड गूगल इट।
आपको प्रॉपर अपीयरेंस पता चल जाएगी। तो ये फीचर होता है मिट्रल स्टेनोसिस का। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द पैथोलॉजी दैट इट इज़ मोस्टली ऑफ रोमैटिक ओरिजिन। रोमैटिक ओरिजिन होता है। अब क्या होता है, ड्यू टू मिट्रल वॉल स्टेनोसिस द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल इज रिस्ट्रिक्टेड, सो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर राइजेस and that lead to atrial fibrillations leading to elevated pulmonary venous capillary pressure। जो pulmonary vein जो है सप्लाई कर रही है ब्लड को हमारे लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स आती है। पल्मोनरी वेन्स हार्ट से ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आई, उसने लेफ्ट एट्रियम में डाला, लेफ्ट एट्रियम से उसने वेंट्रिकल में डाला, फिर वो जाके ऑर्गन्स में गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं आ पा रहा, तो यहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जो पल्मोनरी वेनस प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, विच कैन रिजल्ट इन टू राइट वेंट्रिकुलर आफ्टरलोड। क्योंकि ये जो सारा ब्लड था, जो साइकिल मैंने आपको बनाई थी अभी, हार्ट से ये सारा ब्लड आया था, उसके बाद हार्ट ने कहाँ से सारा लिया था ये ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड सारा का सारा हार्ट लिया था राइट वेंट्रिकल से। ओके, सो राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो राइट वेंट्रिकुलर का लोड है यहाँ पे, इसका लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। So right ventricular load has increased, right ventricular afterload, and it will lead to right ventricular hypertrophy। तो ये जो एरिया है ये हाइपरट्रोफीवाइड हो जाता है। ये एरिया नहीं, हमारा राइट वेंट्रिकुलर एरिया हाइपरट्रोफाइड हो जाता है, साइज में बढ़ जाता है, इट कैन लीड टू फेलियर। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर इज नॉर्मल इन आइसोलेटेड मिट्रल स्टेनोसिस। लेफ्ट वेंट्रिकल का ज़्यादा सीन नहीं है बेसिकली, तो जो पंगा है वो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो बेसिक फीचर्स होते हैं, बेसिक CNS के फीचर्स है ये, सो आपको ये पता होने चाहिए। टॉकिंग अबाउट मिट्रल रीगर्गिटेशन और मिट्रल इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, मिट्रल रीगर्गिटेशन और मिट्रल इनकॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं। इनकॉम्पिटेंस का मतलब कि क्या है कि यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, सिंपल है, आपका एट्रियम से ब्लड जा रहा है वेंट्रिकल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो रहा है, तो कुछ ब्लड जो है वो वापस भी आ रहा है। प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि सारा ब्लड चला जाता है तो हमारे वॉल्स बंद हो जाते हैं, बट यहाँ पे ब्लड जा रहा है और वापस भी आ रहा है, थोड़ा सा रिगर्गिटेशन हो रही है, इनकॉम्पिटेंस है वॉल की, वॉल अच्छे से बंद नहीं हो रहा। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो पैथोजेनेसिस अगर हम इसके देखें तो किसमें दिखाई देता है, हमने मिट्रल स्टेनोसिस भी रूमेटिक ओरिजिन का था, और मिट्रल रीगर्गिटेशन जो बात कर रहे हैं वो भी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का पार्ट है। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और एंडोकार्डाइटिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन are the more common causes of mitral regurgitation, and it is a common feature of Marfan's syndrome। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि जो हमारा जो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ होता है उसमें मिट्रल रिगर्गिटेशन देखने को मिलता है, एंडोकार्डाइटिस जो है हमारा उसमें देखने को मिलता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में देखने को मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ मार्फन सिंड्रोम में मिट्रल रिगर्गिटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना जो हमें डेंटिस्ट्री में पढ़ाते हैं, इट हैज़ अ लॉट मोर थिंग्स टू डू। अगर आपको प्रॉपर तरीके से मेडिसिन पता हो ना, यू कैन रूल आउट नंबर ऑफ डिजीजेस ऑफ द पेशेंट्स जस्ट बाई बीइंग अ डेंटिस्ट। सो इट्स नॉट अ बिग डील। पीपल थॉट डेंटिस्ट आर नॉट the dentists are not actual doctors, but this is actually wrong, because dentists have to study all the medical things also and dental things also, so it's a big deal. So proud dentists. Okay, so this is actually important. This paragraph is actually important. Rheumatoid heart disease, endocarditis, myocardial infarction and Marfan syndromes are related to mitral regurgitations. Talking about next thing, that mitral regurgitation produces symptoms complex that is similar to mitral stenosis, and there is dilatation of left atrium and ventricle both. फर्क क्या है,
मिट्रल स्टेनोसिस में आपका वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल का सीन नहीं था, बट यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रॉब्लम इसमें भी है, ब्लड जा रहा है और वापस आ रहा है, तो डायलिटेशन हो जाती है। मिट्रल regurgitation causes dilatation of left atrium. पल्मोनरी वीनस सिस्टम, ये जो पल्मोनरी वेन्स है इनमें भी डायलिटेशन आता है। कैपिलरीज कंजेशन एंड रिजल्टेंट इंक्रीज इन राइट वेंट्रिकुलर आफ्टरलोड, जस्ट सेम एज मिट्रल स्टेनोसिस, क्योंकि देखो ब्लड यहाँ से गया, ठीक है, फिर वापस आ गया। अब वापस आ गया तो ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन्स में जाएगा। पल्मोनरी वेन से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, ठीक है। लंग्स से कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? राइट वेंट्रिकुलर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगा फिर से। तो जस्ट एज सेम एज मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिगर्जिटेशन में भी राइट वेंट्रिकुलर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, राइट वेंट्रिकुलर आफ्टरऑल बढ़ रहा है, तो वही फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या फीचर्स होते हैं राइट वेंट्रिकुलर के? डिस्निया हो जाता है, एडीमा हो जाता है। राइट वेंट्रिकुलर का जो मेन फीचर होता है ना, जो कहते हैं राइट हार्ट फेलियर या राइट वेंट्रिकुलर आफ्टरलोड, उसका एक मेन चीज़ क्या होती है कि जो राइट हार्ट होता है उससे एब्डोमिनल असाइटिस और एडीमा दिखने का मेन फीचर होता है, वो चीज़ दिखती है, प्लस डिस्निया, ये दो चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं। उसके बाद there is also left ventricular dilatation and apex beat is displaced left as a result of it. मोर डिटेल में अगर बात करें तो इसमें एक चीज़ जो डिफरेंट है स्टेनोसिस से, कि एपेक्स बीट जो होती है वो डेविएट हो जाती है, थोड़ी लेफ्ट की तरफ चली जाती है एपेक्स बीट, प्लस लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायलेट हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। दिस इज़ व्हाट इज सीन, बट फीचर्स राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के ही आते हैं। तो राइट वेंट्रिकुलर फीचर्स डिस्निया हो गया, एडीमा साइटिस हो गया, और क्योंकि कार्डिक आउटपुट लो है, कार्डिक आउटपुट लो क्यों है? क्योंकि जो ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में गया वापस आ गया, ज़्यादा ब्लड तो बाहर नहीं निकल पाया ना, तो आउटपुट नहीं है इतना अच्छा, तो आउटपुट की वजह से फटीग हो जाता है मसल्स को। टॉकिंग अबाउट साइंस, साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस का क्या सीन है कि atrial fibrillations as seen in the stenosis displaced hyperdynamic apex beat. This is important thing, this is a different feature that you should know, that there is a displaced apex beat. Apical pansystolic murmur radiating to axilla. This is also a very different thing, very different thing. यहाँ पे हमारी एपेक्स बीट तो डेविएट हो ही रही है, प्लस पैनसिस्टोलिक मर्मर है, वहाँ पे हमारे पास पैनसिस्टोलिक मर्मर नहीं थी, ठीक है, एंड डायस्टोलिक मर्मर थी हमारे पास। यहाँ पे क्योंकि हमारा ब्लड थोड़ा सा वापस जा रहा है तो पैनसिस्टोलिक मर्मर देखने को मिल रही है। तो यू कैन लर्न लाइक दिस, एंड डायस्टोलिक मर्मर हमारा मिट्रल स्टेनोसिस के अंदर आएगा, अगर ब्लड जा नहीं पा रहा तो यहाँ पे एंड डायस्टोलिक मर्मर दिखेगा, जा रहा है वापस आ रहा है तो हमें पैनसिस्टोलिक मर्मर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद साइंस ऑफ वीनस कंजेशन, पल्मोनरी वीनस कंजेशन एक मेन चीज़ है यहाँ पे। पल्मोनरी वीनस कंजेशन क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो जा रहा है वापस आ रहा है, पल्मोनरी वीनस में वापस जा रहा है, तो स्टेनोसिस में हमारा पल्मोनरी वीनस प्रेशर बढ़ गया था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पल्मोनरी वीनस कंजेशन के फीचर्स दिखाई देंगे, क्रिपिटेशंस दिखाई देगी, पल्मोनरी एडिमा दिखाई देगा, सेम फीचर्स जस्ट एज मिट्रल स्टेनोसिस। पल्मोनरी हाइपरटेंशन यहाँ पे दिखाई देगी, प्लस राइट हार्ट फेलियर दिखाई देगा एज यूजुअल। So all the features are almost same in respective pansystolic murmurs, in respective displaced hyperdynamic apex beat, dilatations of the left ventricle. These are some different features. Now let's talk about aortic stenosis. This video can be a little bit long, but you can watch it in 2x speed because I need to complete the synopsis as early as possible. So I am making it long. Okay. एरोटिक स्टेनोसिस क्या होता है? अब यहाँ पे क्या चीज़ है? अब ये हमारा हार्ट है, ओके, दिस इज योर हार्ट, दिस इज द हार्ट एंड
अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे मिट्रल वॉल की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे एरोटिक वॉल की। ये हमारा एरोटा में जाता है, पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है। पल्मोनरी वेन जो होती है वो बेसिकली आर्टीरियल ब्लड सप्लाई करती है, लंग से ऑक्सीडेटेड आर्टीरियल ब्लड लाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में डालती है, लेफ्ट एट्रियम में डालती है, एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एरोटा में जाता है, और एरोटा से सारी की सारी बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो जाता है। सो दिस इज़ योर साइकिल। अब हम करेंगे इस वाले वॉल की बात, एरोटिक स्टेनोसिस की बात। अब ये वॉल बंद हो गया है या इस वॉल से ज़्यादा ब्लड पास नहीं हो रहा है, तो अब क्या होगा? अब हमारे पास कुछ फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, I need to make it again. So this valve is not working properly, so it can lead to dyspnea. सिंपल सी बात है, ब्लड यहाँ नहीं आ रहा। अब देखो ये फीचर्स कुछ कुछ वैसे ही हो गए मिट्रल स्टेनोसिस वाले, क्योंकि मिट्रल स्टेनोसिस में मिट्रल वॉल से ब्लड नहीं आ रहा था, बट एक्चुअली में एरोटा में ब्लड नहीं था ना, वहाँ पे भी कम था, तो वही चीज़ यहाँ पे। तो डिस्निया ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। चेस्ट पेन वहाँ पे भी था, चेस्ट पेन यहाँ पे भी है, बट अब यू कैन कॉल इट एंजाइना, एंड it can cause syncope death also. What are the signs that you can see? That is injection systolic murmur, cytolic murmur, injection cytolic murmur. ये जो टर्म्स है बहुत टेक्निकल होती है, इतना डीप में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो द फीचर्स। कि हमें यहाँ पे एंड डायस्टोलिक मर्मर देखने को मिला था, इस केस में पैनसिस्टोलिक मर्मर यहाँ पे देखने को मिला था, इस केस में हमें यहाँ पे इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिला। स्लो राइजिंग कैरोटिक पल्स, कैरोटिड पल्स जो कैरोटिड आर्टरी है उसमें प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसकी पल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। देयर इज थ्रस्टिंग एपेक्स बीट, एवी प्रेशर ओवरलोड। फ़र्क क्या पड़ रहा है इस केस में? नेचुरली जो वेंट्रिकुलर का प्रेशर है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का प्रेशर वो बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वेंट्रिकुलर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस केस में हमें थ्रस्टिंग एपेक्स बीट दिखाई देगी। हमें पहले जो मिट्रल रिगर्गिटेशन थी उसमें हमें डेविएटेड एपेक्स बीट देखने को मिल रही थी, यहाँ पे हमें थ्रस्टिंग एपेक्स बीट देखने को मिलेगी। थ्रस्ट का मतलब होता है रगड़ खाना, फ्रिक्शन, सो इट्स थ्रस्टिंग एपेक्स बीट एंड इट्स एवी प्रेशर ओवरलोड। सो ये टर्म्स ना याद कर लो, इंजेक्शन कैरोटिड मर्मर, राइजिंग कैरोटिड पल्स और थ्रस्टिंग एपेक्स बीट। Now talking about the pathology or physiology, so sudden death is seen in aortic stenosis, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे, एरोटिक स्टेनोसिस एक बड़ी बात होती है। एरोटिक स्टेनोसिस यहाँ पर का जो वॉल बंद हो गया है, तो उसकी वजह से बहुत कम ब्लड इन कंपैरिजन टू मिट्रल स्टेनोसिस काफ़ी कम जा रहा है, तो उसकी वजह से देयर कैन बी सडन डेथ, क्योंकि अगर बॉडी में ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑर्गन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। So there can be sudden death. Blood does not enter the aorta due to AS and left ventricle becomes hypertrophied. Chronic blood flow is inadequate and the patient may develop angina and syncope. Eventually, left ventricle can no longer overcome the outflow obstruction and pulmonary edema ensures. So there can be pulmonary edema, there can be a very long pressure in the left ventricle and it cannot ओवरकम दैट थिंग, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेन चीज़ जो यहाँ पे मुझे देखने को मिली है इस एरोटिक स्टेनोसिस में, कि ये काफ़ी सीरियस थिंग है, तो इसमें सिनकोप हो सकता है, बंदा अनकॉन्शियस हो सकता है, बंदे को डेथ हो सकती है, सडन डेथ हो सकती है, और इट एंजाइना, जो मेन एंजाइना होता है ना, चेस्ट पेन, हार्ट अटैक वाला चेस्ट पेन, वो देखने को मिल सकता है। तो ये जो फीचर्स हैं ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the last one, which is aortic regurgitation. Now, it has a lot of features and we have to see all these features. It's quite interesting, plus it's quite different from others. Talking about aortic regurgitation, कि यहाँ पे ब्लड जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है, इसका वॉल्व इतना बढ़िया रही है, आ रहा है और जा रहा है, तो क्या होगा? अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट। अब इसमें ब्लड तो आ रहा है, तो बंदा सिनकोप में, डेथ में, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें क्या होगा? person is aware of the heartbeat, he is actually very aware of his own heartbeat,
It has palpitations, anginas, and breathlessness. Now, see, breathlessness is a feature of each and every type of this. Either mitral stenosis, mitral regurgitation, aortic stenosis, aortic regurgitation, breathlessness will be there. So it's not a differentiating feature. Angina is also there. Angina was also in the mitral regurgitation. It was also in the aortic stenosis. It was also in the aortic regurgitation. So angina is there. Pain will be there in the chest. Okay. Different thing is that the person will be aware of the beat. He will actually be very aware of his heartbeat, and it will have murmurs. Talking about signs, it has end diastolic murmur. So here we go. We have the same feature of mitral regurgitation. Uh, Sorry, not mitral stenosis. Mitral stenosis में यहाँ पे end diastolic murmur देखने को मिला था. Mitral regurgitation में हमारे पे pansystolic murmur देखने को मिला था. Aortic जो थी हमारे पास एरोटिक स्टेनोसिस, वहाँ पे हमें कौन सा था, इंजेक्शन साइटोलिक मर्मर देखने को मिला था. अब हमें वापस से रिगर्जिटेशन में एंडोस्टोलिक मर्मर देखने को मिल रहा है. ओके. ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर, दिस इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट थिंग. ऑस्टिन फ्लिंट मर्मर ना, it's very different thing, so you keep it in mind. It's a very different thing, different feature which can tell you, okay, so this is the aortic regurgitation. That is Austin Flint murmur. अब Austin Flint murmur कैसे याद रखोगे? You can suppose a person, there is person named Austin having a chest pain, come to your clinic as well as with a tooth pain, so you can remember like that, Austin Flint murmur. And there is systolic murmur. Systolic murmur nahi suna, so it's also different. Systolic murmur. Talking about pulse, the pulse is collapsing, bounding peripheral pulses, and talking about different features. Femoral brute. You can see femoral brute here. Okay, femoral brute. That is piston shoot or Durosi's sign. Very different thing about aortic regurgitation. अगर aorta में blood वापस जा रहा है ना, तो बंदे को एक तो पता चल जाएगा कि ओके मेरा ब्लड वापस जा रहा है. So he will be aware. He will have Durosi's sign, have Austin murmur flint, will have femoral brute. He will also have different things. He will have head nodding with pulse. समझे, जैसे अगर किसी को पल्स आ रही है तो अगर वो बिल्कुल शांत बैठा है तो थोड़े टाइम में ऐसा लगेगा कि उसका हेड उसकी पल्स के साथ हिल रहा है. जैसे जैसे वो धड़क रहा है उसका, तो उसका हेड भी उसके साथ हिल रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्यूट साइन. डेब्यूट साइन. It is important. Debut's sign. It is seen in aortic regurgitation. DeRosa's sign. DeRosa's sign. Then there is displaced apex beat. It is very common. It is same as the mitral regurgitation, because mitral regurgitation and aortic regurgitation both of them has displaced apex beat. While in the case of while the case of aortic stenosis, it was not displaced. It was different. It was the thrusting apex beat. Okay, so mitral regurgitation and aortic regurgitation have two main things up to now. They have end diastolic murmur. They have displaced apex beat. So इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. Just know the features. Very important thing. Very important thing. Asked in the papers, फोर्थ हार्ट साउंड आपको कौन सी उसमें सुनाई देती है? चौथी हार्ट साउंड जो है वो आपको एरोटिक रिगर्जिटेशन में सुनाई देती है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो फोर्थ हार्ट साउंड आपको इस एरोटिक रिगर्जिटेशन में सुनाई देगी. पेल्मोनरी वीनस कंजेशन, सिंपल सी बात है, जो हमारा ये वीनस का पार्ट है यहाँ पे पल्मोनरी वीनस है, ये तो कंजेशन होगा यहाँ पे. ये तो सभी में हो रहा है. उसके बाद प्रोट्रूडेड फॉरहेड, लाइट हाउस इफेक्ट. बंदे का प्रोट्रूडेड फॉरहेड, जो फॉरहेड है बंदे का वो काफ़ी ज़्यादा प्रोट्रूडेड होगा. उसके बाद पल्सेशंस ऑफ यूवुला, मुल्लर्स साउंड.
जो यूवुला अगर आप देखोगे ना उस पेशेंट का, अगर आप ओरल कैविटी एग्जामिन करोगे तो यू कैन फाइंड आउट दिस बुलर साउंड, उसका जो यूवुला है वो भी बीट कर रहा होगा. And there is dancing carotids. Very important thing that I've noticed in this aortic regurgitation is carotid thing, and it has also been noticed in this aortic stenosis that there was something with the carotid. There was actually something with the carotid. So important thing to note about this carotid. डांसिंग कैरोटिड्स, ऐसा लगेगा बॉडी में जो उसका जहाँ पे भी कैरोटिड आपको दिख रही है, डांसिंग कैरोटिड का पैटर्न दिखाई देगा, जैसे कि अजीब सा पैटर्न. एंड लोअर लिम्स हैव अ सिस्टोल ग्रेटर देन 20, दैट इज हिल साइन. सो यू कैन हैव अनदर इंटरेस्टिंग फीचर, दैट इज अ हिल साइन. You can make a hill, so it's hill side. So I think in terms of MCQs, this aortic regurgitation is very important. It has a lot of signs. It has de Rosa's sign, that is a piston shoot. It has Demuth's sign. It has lighthouse effect. It has Muller's sign. It has Hill sign. So all these different things are there. Let's talk about the pathophysiology. Aorta dilates. Obviously, aorta gonna dilate, and the left ventricle also dilates and hypertrophies to compensate for the regurgitations. Stroke output of the left ventricle is doubled or tripled, and this leads to awareness of heartbeat and pulsator carotid artery. So, three main features have been in this, that carotid dilates. There is dilatation of the aorta. So, aorta is going to dilate because this is the heart and the blood is coming from here and it is going and coming back, so it's going to dilate. So this also dilate and this is also going to dilate, plus left ventricle dilates. I've told you, hypertrophies. And the important thing is that the stroke output of this left ventricle, it doubles or triples. So that is why the person is very much aware of the heartbeat, so that is why it's happening. So this is really important chart in terms of CVS. We have two more things and we will complete it. In the next video I'll be turning up to COVID. So very all the important features in this chapter I have covered. Then we'll be talking about a lot more about COVID. So in this thing, first is tricuspid stenosis and then there is tricuspid regurgitations. So हमने सारा लेफ्ट का बात किया था, अब हम बात करेंगे ये जो ट्राइकस्पिड का वॉल है हमारा, इसका स्टेनोसिस और अगर इसका रिगर्गिटेशन होगा तो क्या होगा. तो अब हम हमने पैथोफिजियोलॉजी समझ लिया, एक बार दोबारा देखते हैं. अगर हम स्टेनोसिस की बात करें कि ब्लड इसमें नहीं जा रहा, तो अब क्या होता है, ये आपका लंग है, लंग से ऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है सारा का सारा यहाँ, फिर यहाँ से ब्लड जाता है टिश्यूज़ में, टिश्यू से ब्लड वापस जाता है लंग्स में सॉरी टिश्यू से सारा ब्लड जाता है हार्ट में, हार्ट से फिर सारे ब्लड जाते हैं लंग्स में. ओके, तो अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी का इट ऑलवेज अकर्स इन एसोसिएशन विद मिट्रल एंड एरोटिक वॉल डिजीज. सिंपल सी बात है, ट्राइकस्पिड आपको कह रहा है, ट्राइकस्पिड इल्ज़ाम लगा रहा है कि देखो क्योंकि मिट्रल वॉल में प्रॉब्लम हुई थी और एरोटिक वॉल में प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए मेरे अंदर प्रॉब्लम हो गई. सो ये तो जस्ट चीटिंग है, क्योंकि मिट्रल वॉल में अगर प्रॉब्लम है या फिर एरोटिक वॉल में प्रॉब्लम है, सो ट्राइकस्पिड ऑल्सो शोज प्रॉब्लम. दैट इज प्रोसेस देयर इज लॉस ऑफ नॉर्मल रैपिड राइट वेंट्रिकल फिलिंग, प्रॉपर तरीके से फिलअप नहीं हो पाता, एंड द राइट हार्ट फेलियर में गिव राइज टू हेपाटोमेगालीज, असाइटिस एंड पेरिफेरल एडीमा. तो सिंपल सी बात है, ट्राइकस्पिड वॉल में स्टेनोसिस है तो राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा, और अगर लेफ्ट में प्रॉब्लम्स होती है तो भी राइट हार्ट फेलियर हो जाता है. तो ऑलमोस्ट एवरी either your mitral valve problem or tricuspid valve problem, you will have right heart failure. And right heart failure have basic features. It has an edema, it has ascites, it has hepatomegalies, so it's the same thing. Talking about other features,
सिम्टम्स सेम रहते हैं जैसे कि एरोटिक के होते हैं और मिट्रल वॉल डिजीज़ के होते हैं। तो सेम सिम्टम्स आपको ट्राइकस्पिड में दिखेंगे। क्या क्या थे? डिस्निया था, राइट हार्ट फेलियर था, फिब्रिलेशंस थी, पैल्पिटेशंस थी, और भी जो फीचर्स थे वो सारे। राइट हार्ट फेलियर विद हेपेटिक डिस्कम्फर्ट एंड पेरिफेरल एडीमास। प्रॉब्लम बस क्या है यहाँ पे, एक नई चीज़ जो हमें देखने को मिली है, दैट इज़ हेपेटिक फेलियर। ठीक है, लिवर फेलियर जो है वो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में देखने को मिल रहा है। उसके बाद देर इज रेस जुगुलर venous pressure with prominent A wave and mid diastolic murmur. So what you need to know, if you have this problem, you have mid diastolic murmur and you have raised jugular venous pressure with prominent A wave. So two basic features which will come up as like same questions. So you should know about this. Talking about mitral regurgitation. Now what is regurgitation? It is tiredness, hepatic enlargement और edema. Same thing but very important thing, tiredness. अगर mitral regurgitation हुआ, ब्लड जा भी रहा है वापस भी आ रहा है, तो बंदा टायर्ड फील करेगा बहुत ज़्यादा, एडिमा होगा, हेपेटिक एनलार्जमेंट होगी। तो अगर मिड ट्राइकस्पिड अगर इन्वॉल्व होता है तो लिवर फेलियर, लिवर एनलार्जमेंट्स दिखाई देखने को मिलते हैं। देयर इज लार्ज सिस्टोलिक वेव इन jugular venous pressure and there is pansystolic murmur. So murmur, you can have this two types of murmurs. It is mid diastolic murmur and it is pansystolic murmur. So here's the new feature. Pansystolic murmur was also in the mitral regurgitation and it is also in the tricuspid regurgitation. So these have the same things. Plus जो जुगुलर वीनस प्रेशर है वो दोनों में इन्वॉल्व है, उसमें इसमें भी है और इसमें भी है। सो जुगुलर वीनस प्रेशर, जब भी कभी आपको जुगुलर वीनस प्रेशर का क्वेश्चन डाल दे, इसका मतलब ट्राइकस्पिड में प्रॉब्लम है। पैथोलॉजी, एब्स्टीन abnormally the congenital abnormality of tricuspid valve is which it is displaced towards the right apex with large right atrium and displaced to right ventricular apex. So not that important. Important is JVP, pansystolic murmurs, and important is this. Okay, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका एरोटा अगर ख़राब है तो आपको ये चीज़ भी ख़राब हो जाएगी। So with this, I'll end this video. In the next video, I'll be continuing about COVID symptoms. So if you have any question, you can comment down and I'll see you in the next video. Bye bye.